Hello everyone. Namaste friends. Welcome to today's session of daily vocabulary with idioms and phrases. As you know, a strong command of vocabulary and idiomatic expression is not only important for different types of competitive exams like UPSC, BPSC, staff selection, commission, banking, defense, but also for expressing yourself confidently in English. In this series, we will learn powerful words, their meanings, examples, and how idioms and phrases related to them can make your language richer and exam answers more impressive. So let's begin today's learning journey with focus and positively, because every new word you learn today is a new weapon in your success toolkits. Today's word is precocious. Precocious is an adjective. It is used about children having developed certain abilities, capabilities, and ways of behaving at a much younger age than usual. So, synonyms for this word precocious is gifted child, talented child, advanced for one's age, bright child, prodigy. Example sentences are: precocious students' early success in mathematics was due to her ability to grasp complex concept years ahead of her peers. Next example sentence is: she was a truly precocious student, a prodigy whose swift progress promised great future success. We can use this word not about only in studies, in daily life also. He was a precocious musician, composing complex pieces by age 10, according to the Collins Dictionary. Next example sentence is: the company's growth was precocious, far exceeding industry averages. Next example sentence is: symptom of the syndrome can include precocious development. Synonyms and similar words are early, premature, unexpected, sudden, untimely, unreasonable, inopportune, unanticipated, unforeseen, abrupt, unlooked for. So, list of synonym for precocious: advanced, bright, clever, developed, forward, exceptional, quick, talented, smart, sharp. So, new words is inopportune. Inopportune means premature. Unanticipated, same, अप्रत्याशित, unforeseen, अप्रत्याशित, abrupt, एकाएक. So something which is premature, early, unexpected, sudden. Unlooked for, that is something which is unexpected, sudden, early, premature. Antonyms: late, slow, belated, tardy, overdue, anticipated, expected, delayed, behindhand, postponed, detained, delinquent, belated. So सभी का मतलब क्या निकल रहा है? सुस्त है, slow. Few idioms we are going to learn which is related to precocious. Precocious meanings ये बच्चों के लिए यूज होता है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है अपने एज से ज्यादा. इडियम है एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स. यह मुहावरा ऐसे बच्चों, ये युवा के लिए प्रयोग होता है जो अपनी उम्र में कहीं अधिक समझदार या परिपक्व व्यवहार करता है. यूज टू डिस्क्राइब ए यंग पर्सन, ए यंग चाइल्ड हु एक्ट्स और थिंक्स मच ओल्डर एंड वाइजर देन देयर एक्चुअल एज. Example sentence: everyone was surprised by Ria's mature advice. She really is an old ahead on young soldiers. Ahead on young soldiers means उम्र से ज्यादा समझदार. Next example sentence is: at just 10 years old, he manages his work like an adult, clearly an old ahead on young soldiers. कम उम्र में ज्यादा समझदार होना. केवल 10 साल की उम्र में वह बड़े बड़ों जैसी समझदारी दिखाता है. So it's showing a clearly an old head on young soldiers.
Idioms and phrases. So an old hate on young soldiers, it means to be more mature than one's own age. अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना. He is an old hate on young soldiers as he teaches physics at a university at a young age of 25. सो उम्र से ज्यादा वो समझदार था. वो क्या पढ़ा रहा है, वो समझदार है, वो पढ़ा रहा है फिजिक्स को यूनिवर्सिटी में बहुत छोटे एज में, वो सिर्फ 25 years एज में. नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस एंड द वर्ड इज प्रिकॉशस रिलेटेड विद एन idioms and phrases. Everybody hates a prodigy, detest an old head on young soldiers. So phrase one is everyone hates a prodigy means हर कोई विलक्षण. Prodigy means विलक्षण प्रतिभा. Sometimes people feel jealous, insecure, uncomfortable around very talented child. That child is showing prodigy means prodigies because their exceptional abilities highlights other limitation. So prodigy, everyone hates a prodigy. हर कोई विलक्षण प्रतिभाशाली बच्चों को पसंद नहीं करता, प्रोडिजी को पसंद नहीं करता, क्योंकि उनकी असाधारण क्षमता अक्सर दूसरों में क्या लाता है, फीलिंग दैट अनकंफर्टेबल, जेलस एंड इनसिक्योर फीलिंग लाता है. सेकेंड फ्रेज इज टू डिटेस्ट एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स. मीनिंग meaning people may dislike or feel uneasy when a child behaves too mature, over mature, premature, wise or serious for their age because it seems unnatural or intimidating. लोग ऐसे बच्चों को नापसंद करते हैं जो अपनी उम्र में कहीं से कहीं अधिक परिपक्व है, ज्यादा समझदार है, क्योंकि यह असामान्य है, यह असहज लगता है. सो इसकी मीनिंग क्या निकलती है? एवरीबडी हेट्स ए प्रोडिजी, डिटेस्ट एंड होल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स. लोग अक्सर विलक्षण प्रतिभा, प्रोडिजी मीन्स विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चों को पसंद नहीं करते या उससे जेलस की भावना रखते हैं और उन बच्चों से असहज व्यवहार करते हैं जो अपनी उम्र से अधिक परिपक्व और समझदार दिखाई देते हैं. सो एवरीवन हेट्स ए प्रोडिजी, डिटेस्ट एंड ओल्ड हेट ऑन यंग सोल्जर्स. सो अपनी उम्र से अधिक परिपक्व और समझदार दिखाई देते हैं ऐसे लोग अक्सर विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चों को पसंद नहीं करते और उसे स्वीकार नहीं करते हैं. Expression of the day that we have learned an idiom, a precocious, which is related with an idiom, an old head on young soldiers, meaning a young person who acts or speaks like an older person. She appears to have an old head on young soldiers. You appear to have an old head on young soldier. आप बहुत ही परिपक्व दिखते हैं. दूसरा इडियम रिलेटेड है प्रिकॉशस वर्ड से, वाइज बियॉन्ड वंस ईयर्स. वाइज बियॉन्ड वंस ईयर, समवन हु शोज विजडम एंड मैच्योरिटी ग्रेटर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एट देयर एज. उम्र से कहीं ज्यादा समझदार. वाइज बियॉन्ड वंस ईयर्स. At only 12, she gives advice like a grandmother. She is wise beyond her years. वो उम्र से ज्यादा समझदार है. She is wise beyond her years. She gives advice like her grandmothers. वो you are wise beyond your years and you were right. किसी ने कुछ सजेशन दिया, एडवाइस दिया, तो दूसरे दोस्त ने कहा कि यू आर वाइज बियॉन्ड योर इयर्स. आप बहुत ज्यादा समझदार हैं और आप सही हैं. सो यू आर वाइज बियॉन्ड योर इयर्स आप यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में व्हेन यू आर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स और उस वो आप बहुत अच्छा डिसीजन या एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है. सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस, use this idiom, you are wise beyond your years and you are right. नेक्स्ट इडियम है अहेड ऑफ वंस टाइम. इट मीन समय से आगे या दूसरों से कहीं अधिक विकसित करना. हैविंग आइडियाज, स्किल्स और इंटेलिजेंस मच मोर एडवांस देन अदर्स ऑफ द सेम एज. कुछ ऐसी आइडियाज है, स्किल है, इंटेलिजेंस है जो कि आपको लोगों से अधिक ज्यादा एडवांस बनाता है, अधिक विकसित दिखाता है. सो हिज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एट एज 14, सो ही इज अहेड ऑफ हिज टाइम. उसने जो 14 साल की उम्र उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे दिखाता है कि वह समय से आगे है, वो ज्यादा ही डेवलप है, एडवांस है. So ahead of one's time. So his scientific experiments at age 14. So he is ahead of his time.
Ahead of one's time means having more modern ideas also. इसकी मीनिंग दूसरी भी निकलती है. So he was really ahead of his time with his music. Critics in the 90s 70s just could not see it. And that so was really ahead of its time, tackling issues like that. फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग क्या है? वो समय से ज्यादा एडवांस था, मॉडर्न आइडियाज का था, तो कि जो क्रिटिक्स थे उसको क्या करते थे, इन 1970s में नहीं देख सके थे. दूसरा एग्जांपल सेंटेंस, दैट सो वाज रियली अहेड ऑफ इट्स टाइम टैकलिंग इश्यूज लाइक दैट. वो बहुत ही मॉडर्न आइडियाज था, एडवांस उसका थिंकिंग था, जिससे कि सारे इश्यूज को टैकल कर लेता था, हैंडल कर लेता था. Ahead of one's time meanings too advanced or modern or to be understood or appreciated by people around. आप ahead of one's time है माने आप बहुत ही एडवांस है, मॉडर्न है, आप चीजों को समझते हैं और ताकि आपको दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करते हैं. Ahead of one's time, as a scientist she was ahead of her time. एक साइंटिस्ट की तरह वो क्या था, बहुत ही एडवांस था, अहेड ऑफ टाइम था, मॉडर्न था उस समय का, तो लोग उसकी प्रशंसा करते थे. ए ग्रेट फिगर इज यूजुअली अहेड ऑफ हिज टाइम. ए ग्रेट फिगर जो होता है वो हमेशा एक अहेड ऑफ हिज टाइम होता है, जिसको लोग एडवांस होते हैं, मॉडर्न होते हैं, लोग अप्रिसिएट करते हैं. नेक्स्ट वन इज अ बॉर्न ओल्ड. बॉर्न ओल्ड मीन्स जन्म से ही बूढ़ा, जो बच्चा अपनी उम्र से अधिक परिपक्व हो, गंभीर हो. इट इज बॉर्न ओल्ड हम यूज करते हैं हमेशा मजाक में, इन द सेंस ऑफ यू कैन से सटायर भी कर सकते हैं. इट इज यूज ह्यूमरसली फॉर ए चाइल्ड हु एक्ट्स टू सीरियस और मैच्योर फॉर देयर एज. अपने एज में बहुत सीरियस दिखता है, मैच्योर दिखता है, बॉर्न ओल्ड. सो इसको हम हास्यास्पद कंडीशन में भी यूज करते हैं. द लिटिल बॉय नेवर प्लेज ओनली रीड बुक्स ही सीम्स टू बी बॉर्न ओल्ड. वह बच्चा खेलता नहीं है, बस किताबें पढ़ता है, जैसे वह जन्म से ही बूढ़ा है. सो इट्स लाइक ए सटारिकल वे. द लिटिल बॉय नेवर प्लेज ओनली रीड्स बुक ही सीम्स टू बी बॉर्न ओल्ड. सो प्रिकॉशस परिपक्व है. एन ओल्ड सोल. नेक्स्ट वन इज इडियम है, ए यंग पर्सन हु हैज द विजडम, कामनेस एंड मैच्योरिटी यूजुअली फाउंड इन मच ओल्डर पीपल. युवा होते हुए भी वह एक ओल्ड पीपल की तरह उसके पास समझदारी है, शांति वाला स्वभाव है. से इवन एट 15 सी इज सो थॉटफुल एंड ओल्ड सोल इन ए यंग बॉडी. 15 साल की उम्र में ही वह बहुत समझदार है, गंभीर है, तो इसका मतलब है कि ओल्ड सोल इन ए यंग बॉडी है, वह बहुत ही समझदार आत्मा है. सो हाउ ओल्ड आर यू? 13, बट आई एम एन ओल्ड सोल. कि क्या एज है आपका? 13 साल है. आप पूछ सकते किसी से, वो बताएगा, तो लेकिन आप कहोगे कि आप ओल्ड सोल है, मीन्स आप बहुत समझदार है, आप बहुत परिपक्व है. देर इज ए वाइज ओल्ड सोल विद इन एवरी चाइल्ड. हर बच्चे के सामने एक समझदार परिपक्व सोल होता है. सो इट्स अबाउट द word vocabulary. So just kindly revise. The word is precocious. Precocious means used about children जो कि बहुत ही डेवलप है, सर्टेन एबिलिटीज है और वेज ऑफ बिहेविंग एट ए मच यंगर एज देन यूजुअल. इसमें हमने इसके सिनोनिम्स को जाना. गिफ्टेड, टैलेंटेड, एडवांस फॉर वंस एज, ब्राइट चाइल्ड, प्रोडीजी. एग्जाम्पल सेंटेंस हमने देखा, देन सिनोनिम्स को समझा, एंड देन अबाउट द एंटोनिम्स ऑल्सो, एंड इडियम जाना. एंड ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स. नेक्स्ट इडियम इज wise beyond one's year. Second one is ahead of one's time. Third one is born old. And fifth one is an old soul. हमने इसमें phrases भी सीखा, and the phrase is everybody hates a prodigy. First phrase, and second phrase, detest an old head on young soldier. So it is about in vocabulary. So kindly watch the next series. Thanks for watching. Keep practicing all the words. Thank you for watching.